सो आज का टॉपिक है जीवन का अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ. इट्स सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड आई फील जिस समय में, जिस हालातों में आज हम रह रहे हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन का अर्थ क्या है, rather than getting influenced by the worldly ways. जो दुनिया करती है, जो दुनिया के तौर तरीके होते हैं, उससे प्रभावित हुए बगैर हमें जो मसीह में जो जीवन है हमारा, वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करूंगी. इनका नाम है रोश जकारिया. ये नवी मुंबई में रहते हैं और चर्च एट सांतपाड़ा में फेलोशिप करते हैं. ये मैरिड है. इनकी वाइफ का नाम है टीना और इनके 2 प्यारे बच्चे हैं. और ये IWC ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है. उस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं. एंड ब्रदर रोश ने प्रभु को 19 वर्ष में अपने जीवन में स्वीकार किया था एंड तब से वो प्रभु का वचन पढ़ने में और शेयर करने में दिलचस्पी रखते हैं. तो आइए मेरे साथ मिलके उनका स्वागत करें. ओवर टू यू रोश ब्रदर. Is it audible? Yeah. Yes. Thank you. Thank you, Sophie, for the warm welcome, and thank you, Sefin, and thank you, everyone, each one of you who have invited. Will Rajesh brother be translating or? Yeah, I'll translate. Yep. The topic assigned today is on the meaning of life, and this is a subject which, as a teenager, I have struggled with, and I think it is the struggle and common quest of every teenager. जो आज विषय हमने चुना है, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, और ये एक ऐसा सवाल है जो भाई खुद भी जब युवा थे और हर एक युवा के लिए ये बहुत मायने रखता है. Whenever we assume the meaning of life, or whenever we understand the topic that the meaning of life, we immediately jump to conclusion that that is the goal of a person's life. और जब भी हम जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये निष्कर्ष पे तुरंत पहुंच जाते हैं कि ये हमारे जीवन का ध्येय या उद्देश्य है. So this subject, I felt we should do it a little different way. और फिर इसीलिए भाई ने सोचा कि ये विषय जो है वो हम कुछ अलग तरीके से इसे समझें. So how do we do that? In one of the ways in which we can understand this subject is when I don't keep the meaning of life as my end goal. और एक तरीका इसे समझने का ये है कि मेरे जीवन का मतलब मैं अपने जीवन के किसी ध्येय से ना उसे जोड़े. So I will look at that my life, the end result of my life is to seek the will of God. And while I seek the will of God, I find full satisfaction and meaning in life. तो इसीलिए फिर हम ये कोशिश करेंगे कि जब मैं मेरे जीवन का मतलब समझने की कोशिश करूंगा तब मैं ये मेरे लिए ज्यादा अहम है कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहता है. So when I keep the will of God as the central point of my life, or the destination or the goal of my life, that I need to know God's will, God's purpose in my life, then there is meaning and purpose and satisfaction to my life. और जब हम ये समझते हैं कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या चाहते हैं, उनकी मेरे जीवन के द्वारा क्या योजना है, क्या इच्छा है, जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं तब जाके हमें हमारे जीवन का मतलब. So let us see how and what is God's will for each of our lives. We always think that God's will for my life, we try to draw conclusions in either in marriages or in some
Rosh brother, you are not audible. Stephen, could you check? I think we lost him. On it. Hello? Hello? Is it audible? Yeah, now you're audible. Yeah. So sorry, I got disconnected. I don't know how it got. Anyways, so I was saying that we would not keep the purpose of our life as the end result or the end goal, or we would not keep that knowing the meaning of my life as my end result. Rather, I would look at God's will. How do I look at God's will? And if I've got the will of God right in my life, my purposes and my satisfaction and fulfillment is achieved. तो हम यहाँ पे एक प्रकार से हम सोचेंगे कि मुझे ये समझना इतना जरूरी नहीं है कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और क्या मेरा ध्येय है, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि परमेश्वर की मेरे जीवन के द्वारा क्या इच्छा है, तो हमें उससे शांति और हमारे जीवन का मतलब हमें अच्छे से समझ में आता है. So whenever we buy an expensive machine, or if it is a washing machine or anything expensive, we will always get an instructions manual. And that manual is always very critical for us to know how the machine actually functions. और जब भी हम कोई एक नई मशीन लेते हैं, तो हम उसके साथ हमें एक किताब आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि किस तरह से उस मशीन को चलाना है. But oftentimes we jump into conclusion and we try to operate the machine in our own wisdom and understanding, and hence we end up messing up what we should not be doing without referring to the manual instructors manual. और कई बार क्या होता है कि हम वो किताब बिना पढ़े हम अपने हिसाब से उस मशीन को चलाने की कोशिश करते हैं, और कई बार जो है वो हम जो सही से मशीन चला नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कि वो किताब जिस प्रकार से चलाना है मशीन वो हमने नहीं पढ़ी थी. So what happens is, when I look at God's word as an instruction given to me, and when I try to live my life in my own terms and conditions, I can still live it to a certain extent, but it will break down at some point of time. तो इसीलिए जब हम परमेश्वर का जो वचन है वो हम जिस जीते हैं, तो हमारा जो दिशा जो है वो हम भटक जाते हैं. So there will come an exhaustion point of time in each of our lives when we realize that I have come to the end of my resources, trying to live my life in my own terms and conditions, trying to experiment everything that I can, but I am not able to move forward in life. तो इसीलिए जब हम अपने हिसाब से प्रयास करते हैं और फिर एक ऐसी परिस्थिति आती है जब हम थकावट से महसूस करते हैं, और हर एक रास्ता जो है वो हमें इस प्रकार से कोशिश करने के बावजूद भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते.
And I feel each one of us who's listening have come to a certain point in our own lives where we have taken up things in our own hands and have come to that point where we bow down on our knees and say, God, help me. I cannot take this anymore. और हमें पक्का ये पता है कि हर एक के जीवन में यहाँ पे जो भी हम सुन रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति जरूर आई होगी जब हमने सारी चीजें जो है वो हम अपने हिसाब से करने की कोशिश की, सारे प्रयास अपने हिसाब से पूरी तरह से करने की कोशिश की, और उसके बाद हम असफल रहे, और फिर हमने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और कहा कि हे परमेश्वर, अब मैं तेरे आगे हर एक चीज सौंप देता हूँ, झुक जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है. That is the beginning of our search for meaning in life. और वहां से हमारी असली शुरुआत होती है कि जब हम हमारे जीवन का मतलब जानना समझते हैं. It is not how we think that I keep the meaning of my life as a goal, or I try to find it and then start my journey and then come to the point of achieving it. But rather, I come to that point of absolute depending on God, and I look to Him, and I look to Him for help in my life, that God would show me His will in my life. और इस प्रकार से जब हम वो परिस्थिति में पहुंचते हैं कि जब हमें पता चलता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, वो परिस्थिति जो है वो शुरुआत होती है जब हम असली मायने में परमेश्वर की इच्छा के लिए जानने की शुरुआत करते हैं, और ये हमारा शुरुआती परिस्थिति जो है वहां से ही हम सीखना शुरू करते हैं. So let us turn our Bibles to Genesis chapter 1, the beginning of all things. आइए हम पवित्र शास्त्र खोलेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका एक अध्याय, जहाँ पे हर एक जो चीज है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. So there is something very interesting in Genesis, the entire chapter 1. If you look at chapter 1, everywhere in chapter 1 verses 3, it says, let there be light. 6, let there be an expanse between two water, and let there be fish, let there be animals. Everything it was let there be, let there be, let there be. और फिर इस एक अध्याय के बारे में बहुत ही दिलचस्प बात हम देखते हैं कि जैसे वचन, एक अध्याय का 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो. 6 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने तब कहा कि जल के बीच अंतर हो. इस प्रकार से हर एक परिस्थिति में, हर एक वचन में ऐसे लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा. So when we come to chapter 1 verse 25, it says God made the wild animals according to their kinds. On the 6th day God made the animals. और जब हम उत्पत्ति का 1:26 में पहुंचते हैं, तब वहां पे लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में अनुसार अपनी समानता में बनाया, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें. Yeah, brother Rajesh just read that next verse. We were coming to that itself. So I was saying, on 6th day, the first half, God made the animals. On the same day, on the latest part, He decided, and He said in verse 26, let us make man in our own image, in our likeness, let them rule over the fish and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, over all the creatures that move along the earth. Up to the 6th day, He was creating things, and if I look at it, I would see it was done maybe as a purposeful thing in the eyes of God, but not as an act of intelligence in our side, until He made man in His own image. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 25 और 26 में जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन तक जो है वो बनाने का काम किया, सृष्टि की रचने का काम किया. और जैसे 25 में भी ये वचन में पढ़ना, 26 का वचन मैंने पहले पढ़ा, तो 25 में लिखा है कि तो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. और फिर जाके 26 आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्यों को अपने स्वरूप अनुसार की समानता में बनाया. So God created
man with the same dust that he created animals. और जिस मिट्टी से परमेश्वर ने जानवर या पशुओं को बनाया, उसी मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्यों को भी बनाया. If you see, there is a lot of similarities between animals and men. और अगर हम तुलना करेंगे तो मनुष्य और जानवर में बहुत सी समानताएं हैं. And that is why sometimes we use the words man is a social animal. और इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सामाजिक जानवर की तरह है. So you may ask, what is the similarities? They have got 2 eyes, we have got 2 eyes. They have got 2 hands, many of them have 2 hands, we have 2 hands. They have 2 legs, we have 2 legs. They have a kidney, we have a kidney. They have a liver, we have a liver. There are many similarities between an animal and a man. तो सवाल हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य और जानवर में क्या समानता है. जैसे शारीरिक रूप से हमारे पास 2 हाथ है, कई जानवरों के पास 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, या फिर 1 किडनी होती है, 2 किडनी होती है. तो उस प्रकार से शारीरिक रूप से कई सारी समानता हम देखते हैं. But there is one thing which they do not have, but we have. परंतु एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पास है लेकिन जानवरों के पास नहीं. They do not have the breath of God. और उनके पास परमेश्वर का The breath of God. परमेश्वर की सांस नहीं है उनके पास. So when God breathed into man, God made man in his likeness. और जब परमेश्वर ने मनुष्य में अपनी सांस जो है फूकी, तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया. God created man so that man should show forth the likeness of God. और परमेश्वर में मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य अपने स्वरूप में परमेश्वर को दर्शाए. So that we are to represent God in our behavior and in our conduct. और इसीलिए ताकि हम अपने बर्ताव के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा परमेश्वर को दर्शाएं. When we stop representing God in our behavior and in our conduct, we sometimes stoop to the level of an animal. और जब हम एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचते हैं कि हमारे बर्ताव या हमारे आचरण से हम परमेश्वर को दर्शाना बंद कर देते हैं, तो हम जानवर के स्तर तक नीचे पहुंचते हैं. And that is why we read in the Bible, it says God gave them over to their depraved minds to engage in lusts of different kind. और इसीलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक स्थिति में उनको डाला कि वो भ्रष्ट हो गए और जो शारीरिक लालसाएं हैं उसके अधीन हो गए. So the breath of God, the image of God, the likeness of God is what we are supposed to represent. So that, in short, when I step out of my home, when I walk in the streets, when I am in the office, when I am at my family, I am showing forth the likeness of God. तो इसीलिए जब भी हम बाहर निकलते हैं, या फिर जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे घरों में या फिर रास्ते पर जब हैं, तो हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर को दर्शाना है, क्योंकि उसकी समानता में हमें बनाया गया है. That is why the Bible says we are the ambassadors of Christ. और इसीलिए पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं. An ambassador will always represent his or her own country. और जो भी प्रतिनिधि होता है, जैसे दूत होता है किसी राष्ट्र का, तो अपने राष्ट्र को वो प्रतिनिधित्व करता है. He will never let his country down. और अपने राष्ट्र को वो कभी नहीं चाहेगा कि उसे नीचा दिखाए. So his conduct, his representation is at the highest level because he is representing his country. और जब वो अपने राष्ट्र को एक दूत की तरह दूसरों के प्रति प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका जो आचरण जो होता है, उसका व्यवहार जो होता है दूसरों के साथ, उसका स्तर बहुत ऊंचा होता है. So when we look at the animals, God did not create animals in his image. Neither when I look at the angels, even though they are superior than us, even they are not the ambassadors of Christ. और इसीलिए जब हम जानवरों के प्रति देखते हैं, तो वो
परमेश्वर के स्वरूप में बनाए नहीं गए जैसे मनुष्य को बनाया है, और स्वर्गदूत भी भले वो मनुष्य से ऊपर है दर्जा में, लेकिन वो भी परमेश्वर के प्रतिमा में नहीं बनाए गए। So we have been given a high position of being a representative of Christ wherever we go. तो इसीलिए हमें एक ऊंचा स्थान दिया गया है जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि के तौर पे, जहां पे भी हम जाएंगे हम प्रभु यीशु को प्रतिनिधित्व करेंगे। So when I look at chapter 1 verse 26 of Genesis, when God sets together to make man in his own likeness, he wants him to rule over every fish of the sea and every birds of the air. He wants them to be fruitful and multiply. और इसीलिए जब हम उत्पत्ति का 1:26 में जैसे हमने पढ़ा कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, और इसीलिए बनाया ताकि वे समुद्र की मछलियां या फिर आकाश के पक्षी, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। So if I ask why did God create man, तो अगर हम सवाल करेंगे कि परमेश्वर क्यों बनाया, I can give 3 reasons from this text. Is one, God created man to be a ruler, to be a king. और इस वचन को मद्देनजर रखते हम 3 कारण बता सकते हैं। एक तो राज करने के लिए एक राजा की तरह बनाया, To be a representative, to be an ambassador, प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया, to be fruitful and to multiply, that is to make many more ambassadors. और उसी के साथ फलने के लिए, यानी कि और ऐसे हमारे जैसे प्रतिनिधि करने वाले लोग बनाने के लिए। So if I ask the will of God in my life, what is the will of God in my life? The will of God in my life is to be a representative of God wherever I go. तो अगर सवाल हम ये करेंगे कि मेरे जीवन से परमेश्वर की क्या इच्छा है, तो उसका उत्तर ये होगा कि जहाँ पे भी मैं रहूं मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रतिनिधित्व करूं, ये परमेश्वर की इच्छा है। So the question arises, are we representing Christ correctly? तो सवाल ये उठता है फिर कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को सही तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। So now comes the question for the day. If I am not representing Christ correctly, it means I am pursuing that which is not of God. और फिर हम उस तरफ देखते हैं कि अगर इस सवाल का जवाब सही नहीं है कि मैं सही तरह से नहीं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मैं जो भी चीज के पीछे चल रहा हूं वो परमेश्वर से नहीं है। That is when we see all around us people pursuing wealth, people pursuing fame, people pursuing pleasures, people pursuing their career, people pursuing number of things but God. और यही बात हम हमारे आस पड़ोस में भी देखते हैं कि लोग जो है वो परमेश्वर को छोड़कर हर एक चीज, जैसे नौकरी हो, मशहूर होना हो या फिर अपना व्यवसाय हो, हर एक चीज जो परमेश्वर के अलावा है उसके पीछे पड़े हैं। And hence they feel that they derive their meaning in the things that they are pursuing. और इसीलिए उन्हें ये लगता है कि जो भी चीज वो कर रहे हैं उसके द्वारा उन्हें जीवन का मतलब समझता है। So there is an old saying that says, it is not what we do that determines who we are. और एक पुरानी कहावत है जो ये कहती है कि हम जो करते हैं उससे हमारे बारे में पता नहीं चलता, But rather it is who we are and what I believe that determines what I do. परंतु जो मैं हूँ और जो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो चीजें तय करती है कि मैं क्या करता हूँ। So it is not my work that determines my identity. तो इसीलिए जो काम मैं करता हूँ उससे मेरी पहचान नहीं बनती। So it will be wrong to find meaning from my work that I do. और इसीलिए ये गलत होगा जब हम अपनी पहचान जो काम हम करते हैं उसके द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं। So the right way is to derive meaning is to know who I am and what I believe.
और सही तरीका ये होगा कि पहले हम अपने आप को समझे कि मैं कौन हूँ और मैं किस चीज पर विश्वास करता हूँ, ताकि हमारे जीवन का मतलब हमें समझ में आए। And the Bible says, I am the child of God. और पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। When I have put my trust in my Savior, Lord Jesus Christ, I am the child of God. और जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा, वैसे ही मैं परमेश्वर की संतान कहा गया। So my and your focus in life should be to know what is the will of God for his children of God. और इसीलिए मेरी और आपके जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि परमेश्वर की संतान होने के नाते उसकी मेरे जीवन के द्वारा क्या इच्छा है। So we turn our Bibles to 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3. हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीयों का 4:3। It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हरेक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। So it is a very clear will. If anybody is struggling in this life or in our group, so what is the will of God in my life? It is a very clear instruction given from the Bible that God's will for your life and my life is to be sanctified. और अगर हम इस सवाल से जूझ रहे हैं कि परमेश्वर की मेरे जीवन से क्या इच्छा है, तो यहाँ पे वचन में साफ तरह से यही बताया गया है कि परमेश्वर की हमारे जीवन से यही इच्छा है कि हम पवित्र बने। To be sanctified is to be set apart for holy work. और पवित्र बनने का मतलब ये है कि हमें अलग रखा गया है, और किस लिए अलग रखा है? ताकि हम पवित्र काम करें। So the two categories given here is that one, you should avoid sexual immorality, and two, that each one of you should learn to control his own body. और यहाँ पे दो प्रकार के गुण यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो हमें व्यभिचार से बचना है, और दूसरा हमारे शरीर के ऊपर हमें नियंत्रण पाना है। So when I do not avoid sexual immorality and I do not learn to control the passion and the lust of my body, और जब हम व्यभिचार से नहीं बचते हैं और हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर की अभिलाषाओं को किस प्रकार से काबू करना है, there is meaninglessness that creeps in within our life. तब हमारे जीवन में एक अर्थ न होने की भावना जो है वो हमारे जीवन में पैदा होती है। You know why? Because we are pursuing that which is not the will of God in my life. और उसका कारण यही है कि हम एक ऐसी चीज के पीछे हम चले हैं जो परमेश्वर की मेरे जीवन से इच्छा नहीं है। When I look at the life of Solomon, he had 700 wives and 300 concubines. और जब हम सलमोन के जीवन में देखते हैं तो सलमोन के पास 700 पत्नियां थी और 300 उपपत्नियां थी। A man with the highest wisdom who ever lived, man who God gave everything because he asked for the right thing, somewhere down the line went astray because of the women that he loved and he married. और एक ऐसा सलमोन एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने इतनी सभी मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान उससे कहा गया, क्योंकि परमेश्वर से उसने ये बुद्धि मांगी थी। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि उस स्त्री के कारण जिससे वो प्रेम करता था, उसके कारण जो है किस प्रकार से वो राह से भटक गया। So he did not avoid sexual immorality, neither did he learn to control the passion of his body. और वो ना ही व्यभिचार से बचकर रह सका, ना ही वो सीख सका कि किस प्रकार से शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर काबू पाना है। That is why when he becomes an old man,
he writes in Ecclesiastes chapter 12, the last verse, fear God, keep his commandments, that is the whole duty of man. और इसीलिए जब वो बूढ़ा हो जाता है और फिर उसने वचन में जैसे लिखा है, सबोपदेशक fear God and keep his chapter, commandments. which chapter? Chapter 12, Ecclesiastes chapter 12, the last Okay. verse. सबोपदेशक 12 अध्याय का आखिरी वचन, जो 14 वचन है, जहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा. So a man who was chosen by God to be a mouthpiece for God, eventually who couldn't control the passion and the lust of his body, fell into sin. And because he fell into sin, we have the book of Ecclesiastes, where we all have read, it talks about meaninglessness, utterly meaninglessness. और यहाँ पे एक ऐसे मनुष्य के बारे में हम पढ़ते हैं जो परमेश्वर का प्रतिनिधि हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार से वो व्यभिचार से नहीं बच सका और अपने शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर काबू नहीं कर सका, और फिर जिसकी वजह से उसने ये सबोपदेशक लिखा है, और हर जगह जो है वो किस प्रकार से व्यर्थहीन है हर एक चीज, उस बारे में उसने लगातार जिक्र किया. That is why he goes on to say in Ecclesiastes chapter 12 and verse 1, remember your creator in the days of your youth. और इसीलिए सबोपदेशक 12 का 1 में उसने लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख. Because he knew very well that if you forget your creator in the days of your youth, you will not avoid sexual immorality. You may have no control over the body, the lust of your body, and you may end up in a life without any meaning, without any purpose, without any satisfaction. And you may come to a point in life where you feel that everything that I see is meaningless and meaningless. क्योंकि वो जानता था कि अगर जवानी के दिनों में हम सृजनहार को नहीं स्मरण रखेंगे, तो ना ही हम व्यभिचार से बच पाएंगे, ना ही शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर काबू कर पाएंगे, और फिर जीवन में वो पड़ाव आएगा जहाँ पे हर एक चीज जो है वो व्यर्थ महसूस होगी. Now we'll turn the limelight to each of us. Now when we looked at Solomon, we may think that how could he do something like this? When God chose him as his instrument, how could he marry 700? How could he have 700 wives and 300 concubines? But when we turn the light to us, and when we look at our own lives, we will see that maybe we have also scrolled down through the net, seeing different images and thinking of many lustful things in our mind. Perhaps we may have even crossed thousands of women. और हम शलमोन के बारे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि किस प्रकार से, कैसे हो सकता है कि शलमोन को, जिसने परमेश्वर ने चुना था, और उसके बावजूद जो है वो किस प्रकार से 700 पत्नियां उसने बनाई और 300 पत्नियां बनाई, और ये कैसे हो सकता है. लेकिन अगर हम अपने बारे में यहाँ पे सोचने की कोशिश करेंगे, तो हम भी अपने आप को शलमोन से कुछ ज्यादा अलग नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कितनी बार हमने इंटरनेट पे ऐसी तस्वीरें देखी हैं और इस प्रकार से हम व्यभिचार में पड़े हैं, और हो सकता है कि नहीं तो केवल 700 पत्नियां बनाई थी, लेकिन हमने भी अपने मन ही मन 700 से ज्यादा शायद हो सकता है कि Because the Bible says if you look at a woman lustfully, you have already committed adultery in your heart. क्योंकि पवित्र हमें यह कहता है कि अगर हम मन में भी किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं, तो हमने मानो वो चीज वास्तव में की है, उस प्रकार से है. So it is very clear that the will of God for each of our lives is to be sanctified, is to be holy, is to be set apart, is to avoid sexual immorality, and is to control the lusts of our body. तो इसीलिए साफ तौर पे वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर की हमारे जीवन से यही इच्छा है कि हम पवित्र बने, हम व्यभिचार से बचे रहें, और किस प्रकार से हमें शारीरिक अभिलाषाओं पे काबू करना है वो हम सीख सकें.
So we are very clear about what is the will of God for each of our life. The will of God for each of our life is to be sanctified. और इसीलिए हम अपनी जीवन से परमेश्वर की क्या इच्छा है इसके बारे में साफ रीति से हमें पता है अभी कि वही है कि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पवित्र रहें. So the meaning of life, the Bible does not tell God's purpose for it, but rather it says that when I fulfill God's will in my life, we can find meaning and satisfaction in our life. तो इसीलिए वचन हमें यही कहता है कि परमेश्वर का हमारे जीवन से कोई उद्देश्य करके जब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी करने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे और उसके अनुसार जीने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमारे जीवन को मतलब प्राप्त होता है. Proverbs 25 verse 28 says, नीति वचन 25 का 28 में लिखा है that a man who lacks self-control is like a city whose walls are broken. जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी तना नाका करके तोड़ दी गई हो. So just imagine a city without walls. और कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जिसकी बाउंड्री जो है वो टूट चुकी हो. So whenever we are pursuing anything in life that is not the will of God, तो इसीलिए जब भी हम हर एक चीज के पीछे लगे हुए रहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, we can be rest assured we are under the attack of the evil one. तो हमें ये समझना चाहिए कि जरूर ये शैतान का हमारे ऊपर हमला है. And we can be 100% sure that the enemy, the walls of the city is also broken because he himself has given room for the enemy to attack him. और हम यहाँ पे उस नगर की तरह है जिसकी शहपनाह की नाका करके तोड़ दी गई है, उस नगर के समान है क्योंकि हमने ही ये चुना है. So the second one, let's turn our Bibles to Colossians chapter 3 verse 5. की किताब 3 का 5 में जाएंगे. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है. The Bible put to death. So it is the will of God for your life and my life to put to death whatever belongs to our earthly nature. और वचन हमें यहाँ पे कहता है कि मार डालो, तो हर एक चीज जो इस पृथ्वी से जुड़ी हुई है उसे हमें मार डालना है. If anything separates you from the love of Christ, put to death the nature of your earthly, selfish nature which longs to gratify the desires of your flesh. और वचन हमें यहाँ पे प्रोत्साहित करता है कि हर एक चीज जो हमें इस शारीरिक अभिलाषाओं से, जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, यहाँ की भावनाओं से जुड़ी है, उसे हमें मार डालना है. Now we turn our Bibles to Luke 17 verse 33. लूका की किताब 17 का 33 आयत देखेंगे. It is a very clear instruction given that whoever tries to keep his life, he will lose it. But whoever loses his life will preserve it. यहाँ पे लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा. So if you want to find the meaning of life, it is my desire to find the meaning in life, I cannot be a selfish person. तो इसीलिए अगर मुझे अपने जीवन का अर्थ समझना है, ढूंढना है, तो मैं स्वार्थी मनुष्य नहीं हो सकता. If I am a selfish person, I am building my own kingdom and I am putting God down. और अगर मैं स्वार्थी हूँ तो मैं अपना खुद का राज जो है वो स्थापित कर रहा हूँ और परमेश्वर को मैं नीचे दिखा रहा हूँ. And the Bible says, whoever tries to keep his life will lose it.
और वचन हमें यहाँ पे बताता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, but rather whoever loses his life for the sake of Christ will find it. परंतु हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे जीवित रखेगा। So if today there is a sense of purposelessness in my life, it is because I am building my own kingdom, my own plans, and in my own terms and conditions. तो इसीलिए अगर आज मैं अपने जीवन को व्यर्थहीन पाता हूँ तो वो इसलिए है क्योंकि मैं अपना जीवन मेरी योजनाओं के अनुसार, मेरी इच्छाओं के अनुसार जी रहा हूँ। And if I do so, the more and more I build my kingdom, the more and more restless I become in life. और मैं अगर ऐसे ही करता रहूंगा तो जितना ज्यादा मैं अपना राज स्थापित करने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा व्यर्थहीन मैं जीवन में महसूस करूंगा। And that is one of the fundamental reasons why there is a high rate of suicide, high rate of depression, high rate of identity crisis. और यही एक मूलभूत कारण है जिसकी वजह से हम यहाँ पे समाज में इतने ज्यादा जो है वो निराशा, इतना ज्यादा सुसाइड के बारे में हम देखते हैं। Now we'll turn our Bibles to 1 Peter chapter 2 verse 13. आगे हम जाएंगे पहला पत्रुस 2:13 में। It says, submit yourself for the Lord's sake to every authority instituted among men. और यहाँ पे लिखा है प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। It is God's will for your life and my life to submit to authority. और ये परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे जीवन के लिए कि हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें। So when I rebel against authorities, even if they are not right in what they are saying, और जब हम बंडखोरी करते हैं अपने अधिकारियों के साथ, मान लो अगर वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तब भी unless it is a moral issue where I have to take a stand between right and wrong, जब तक ये एक नैतिक समस्या नहीं है जहाँ पे मुझे सही और गलत का चुनाव करना है, I should submit to authorities no matter how they are. तब तक मुझे अपने अधिकारी के अधीन रहना है, इसके बावजूद कि वो कैसे हैं। That is the will of God in my life. और ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन के लिए। So we looked at 5 things. Couple of them. Number 1, God's will for my life is to be sanctified. इस प्रकार से हमने परमेश्वर की इच्छा के बारे में कुछ चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर की मेरे जीवन से ये इच्छा है कि मैं अपने आप को पवित्र रखूं। Is to be set apart and holy. दूसरी बात हमने देखी कि मुझे अलग रखा गया है ताकि मैं पवित्र रहूं। Is to control the passion of my body and to avoid sexual immorality. तीसरी बात हमने देखी कि मेरी शरीर की अभिलाषाओं को मुझे काबू करना है और व्यभिचार से बचना है। And I have to put to death everything that belongs to my earthly nature, that is impurity, greed, idolatry, everything. और हर एक चीज जो इस पृथ्वी से जुड़ी हुई है वो मुझे मार डालनी है, जैसे लालच हो या फिर ईर्ष्या हो या फिर मूर्ति पूजा हो। And it is also God's will for my life to stop building my kingdom, but rather I would live it for the Lord's sake. और ये भी परमेश्वर की मेरे जीवन की इच्छा है कि मैं अपना ही राज्य बनाना मैं बंद करूं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना शुरू करूं। And it is also God's will in my life to submit to authorities no matter how they are. और परमेश्वर की मेरे जीवन से ये भी इच्छा है कि मेरे अधिकारियों के अधीन में रहूं, इसके बावजूद कि वो कैसे हैं। So when I fulfill God's will in my life, I begin to find meaning and satisfaction in my life. और जब मैं परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन के द्वारा पूरा करना शुरुआत करता हूँ, तब जाके मेरे जीवन को मैं अर्थ प्राप्त करता हूँ। And I find that very interesting because I do not make the sole goal of my life to seek for meaning in everything that I do.
और ये एक दिलचस्प बात है कि हर एक चीज जो मैं करता हूँ उसके द्वारा मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की कोशिश नहीं करता, Because the Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. ये वचन हमें बताता है हमें अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं होना है, परंतु हर एक चीज में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और निर्भर होना है। The more I do things to please myself, the more I will feel unfulfilled. और जितनी ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि चीजें मेरे हिसाब से मेरे लिए करूं, उतना ही ज्यादा मैं अपने आप को खालीपन महसूस करूंगा। So this is one of the approaches in which we trust God, we lean on His understanding, we try to seek the will of God in my life, and in the process, I find satisfaction and fulfillment and meaning in my life. तो ये एक तरीका है जहाँ पे परमेश्वर की इच्छा से जीने की जब मैं कोशिश करता हूँ तो हर एक चीज में मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता हूँ, ना कि अपने मेरे बुद्धि के ऊपर। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब मैं जीने की कोशिश करता हूँ तब जाके मेरे जीवन में जो व्यर्थहीन जीवन था उसमें हमें अर्थ समझने की शुरुआत होती है। But many people would say that I better have another approach where I will seek the purpose of life by exploring all things. दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो ये मानते हैं कि अलग अलग चीजें जो हैं वो मैं उसे महसूस करूंगा और उनके द्वारा मैं समझने की कोशिश करूंगा कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। So we'll turn our Bibles to Luke chapter 12, the parable of the rich fool. Luke chapter 12. Yeah. लूका की किताब उसका 12 अध्याय जहाँ पे एक धनी मनुष्य जिसे मूर्ख कहा गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। So here is a man who had a bumper crop and he felt to himself that now I'll have to tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods, and I will say to myself that I have plenty of good things laid up for years. I will take life easy, drink and be merry. और यहाँ पे एक ऐसे मनुष्य के बारे में हम पढ़ते हैं कि जिसे इतनी ज्यादा फंसा हुई कि उसके जो पुराने खलियान थे वो भर चुके थे और उसे ये लगा कि मैं और नए बनाऊंगा और उसमें भी अनाज इतना मैं समा दूंगा कि बाकी जिंदगी जो है वो मैं ऐश आराम में जी सकूं। And do you know what God said to that man? You fool. और आपको पता है परमेश्वर इस मनुष्य को क्या कहते हैं? हे मूर्ख। Why? Because he trusted in his wealth. और कारण उसका यही है कि क्योंकि इस मनुष्य ने अपने संपत्ति के ऊपर भरोसा रखा। He derived his meaning in his life by the wealth that he possessed. और उसने जो संपत्ति उसने जीवन में उसने कमाई थी उसके द्वारा अपने जीवन को अर्थ देने की कोशिश की। And that is why there is a solemn warning for each one of us in verse 15. Watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. और इसीलिए हम सभी के लिए यहाँ पे एक गंभीर वार्निंग है जहाँ पे लिखा है और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो क्योंकि Turn our Bibles to Matthew chapter 16. मत्ती 16 अध्याय में जाएंगे। Verse 24 to 26. 24 से 26। If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. What good will it be for a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उससे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? It is as simple as this. What shall it profit you if you have gotten
everything you want in life, whether it is your career, it is your ambition, it is a high income salary, it is a better home, a bigger home, but if you lose your soul in the process, what shall it profit a man? और ये समझना बहुत आसान है। यहाँ पे यही कहने की बात हो रही है कि अगर अपने जीवन में हमने हर एक चीज जो हम चाहते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, हर एक चीज जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, वो सब हमें मिला, लेकिन हमारे प्राण हमने खो दिए, तो इसका हमें क्या फायदा होगा? We turn our Bibles to Luke chapter 8 verse 14. लूका का 8 का 14 देखेंगे। Here is a parable of the sower where the sower goes and he begins to sow the seed. Some fell on the path side, some fell on the rocky side, some fell among the thorns, and some fell on good soil. So the ones that fell, yeah. यहाँ पे हम उस दृष्टांत के बारे में हम बात करते हैं, जो बीज बोने वाला व्यक्ति है, और जो वहाँ पे कुछ बीज जो है वो मार्ग के किनारे गिरा, कुछ चट्टान पे गिरा, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। But the seed that fell among the thorns, something happened. They were choked by life's worries, riches, and pleasure. Verse 14. और 14 आयत में हम देखते हैं कि जो झाड़ियों के बीच में बीज जो गिरा था, वो जो है वो होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस गया, और उसका फल नहीं पका। So it is possible that a seed that is sown on a good soil can be choked by the worries that we entertain in our mind, the wealth that we possess in our banks, and the pleasures that we so easily entertain in our minds. तो ये संभव है कि जो अच्छा भूमि में बीज गिरा था वो भी फल नहीं दे पाएगा, और कारण ये है कि हर एक चिंता जो हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, हर एक सारा संपत्ति और धन जो हम कमाते हैं, और हर एक जीवन की सुख विलास की चीजें जो हमारे पास मौजूद है, इन चीजों की वजह से हम फल नहीं दे सकते। So the Bible very clearly says that they do not mature. और वचन हमें साफ रीति से बताता है कि उनका फल नहीं पकता। So it is very clear that the ones who pursue life in their own terms and conditions will find wealth as one destination. और इसीलिए साफ रीति से हम देख सकते हैं कि वो लोग जो जीवन जो है वो एक ध्येय की तरह जीते हैं, तो उनके लिए संपत्ति कमाना एक उनका अंतिम ध्येय होगा। Career, their ambition, their career as another destination. दूसरी बात जो अहम उनके लिए होगी वो उनकी नौकरी। Thirdly, their pleasures that they feel which is important to enjoy. That is another destination for them. और तीसरी अहम बात उनके लिए होगी कि जीवन के सुख विलास जो उन्हें पसंद है। There is also one destination which people, the elite, the ones who we think possess maximum, and that is the pursuit of knowledge. और एक प्रकार के लोग हैं जो एलाइट या फिर अभिजात कहा जाते हैं, जिनके पास काफी बुद्धि है। वो ये समझते हैं कि उन्हें और ज्यादा हर एक चीज के बारे में जानना है और बुद्धिमान और बनना है। Their sole ambition in life is to acquire knowledge. और उनके जीवन में केवल एक ही मकसद होता है, और वो है ज्ञान बढ़ाते रहना। And we know in Ecclesiastes chapter 1 and 2 how Solomon, who had so much of wealth, he was the king, he had all the power to acquire all the knowledge, found himself in a very miserable point where he felt that even wisdom was meaningless. और जैसे हम सबोपदेशक 1 और 2 में हम क्या पढ़ते हैं उस शलमोन के बारे में, जिसके पास हर एक चीज थी, हर एक बुद्धि थी, और पृथ्वी का हर एक सुख विलास की चीज, धन संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद उसे जीवन जो है वो व्यर्थ महसूस हुआ। So now we saw when a man pursues things in his own terms and conditions, he will end up in different stops in life. और इस प्रकार से हमने देखा कि जब मनुष्य जो है वो इस
सांसारिक चीजों के पीछे जब दौड़ता है तो अलग अलग जगह पे जाके वो रुक जाता है। Now we turn our Bibles. Now we're looking at the example of Christ. अब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति देखेंगे एक उदाहरण के तौर पे। Now, for example, when I try to teach you to swim, उदाहरण के तौर पे मानो मैं आपको तैरना सिखा रहा हूँ, I will take a white paper and I will draw how to swim by giving you right instructions by drawing it on the white paper. और जब मैं सिखा रहा हूँ तैरने के लिए, तो मैं एक सफेद कागज लूंगा और उसके ऊपर मैं निर्देश दूंगा आपको कि किस तरह से तैरना है। I will do all the right diagrams to tell you how to move your hands, how to move your legs, how to jump, when to jump. I will tell you everything by illustrating it on a piece of paper. और हर एक जो चीज है, जैसे हाथ कैसे हिलाना है, पैर किस तरह से हिलाना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, वो मैं आपको वहां पे रेखा चित्र के द्वारा उस कागज के ऊपर में दर्शाऊंगा। However, you will still learn not to swim. और इतना सब कुछ करने के बावजूद आप तैरना नहीं सीखोगे। But if I jump in the water and teach and demonstrate how to swim, perhaps you will learn better how to swim. और इसके विपरीत अगर मैं खुद आपके साथ पानी में उतरूं और पानी में आपको बताऊं कि किस तरह से तैरना है, तो शायद आप तैरना सीखेंगे। So an instruction is never as good as an example. तो निर्देश एक उदाहरण से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। So the Old Testament was instruction, and the New Testament we have an example in the Lord Jesus Christ. तो पुराना नियम उस निर्देश की तरह है और प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण की तरह हमें नए नियम में हम पाते हैं। So now we will look to Christ, how the Lord Jesus Christ lived. तो अब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के प्रति देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया। We turn our Bibles to Mark chapter 10 verse 45. मरकुस की किताब 10 का 45 हम देखेंगे। For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। When God himself came not to be served but to serve, how can I demand to be served? अगर परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया है कि उसकी सेवा की जाए, परंतु खुद सेवा करने के लिए आया, तो मैं एक केवल मनुष्य होने के नाते किस तरह से ये मैं सोच सकता हूँ कि मेरी कोई सेवा करे। And if I am desiring to be served, I am not an ambassador of Christ. और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी सेवा की जाए, तो मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। Philippians chapter 2 verse 3. फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 3 वचन। Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। So if I am unable to consider others better than me, I cannot be an ambassador of Christ. और अगर मुझे तकलीफ होती है जब दूसरों को मैं अपने से अच्छा समझता हूँ, तो मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि नहीं हूँ। Verse 4 says, each of you should not only look to your own interest, but also the interest of others. 2 का 4 में लिखा है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। So if I am looking to my own interest, I cannot be an ambassador of Christ. और अगर मैं केवल अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि नहीं हूँ। We turn our Bibles to John chapter 12 verse 24. यूहन्ना की किताब 12 का 24। I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a seed. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। So it is important that the seed falls, it dies, and then only it will come forth. तो इसीलिए ये जरूरी है कि वो दाना जो है वो भूमि में पड़ा जाए,
उसे वो मर जाता है और तब जाके उसे फल आता है। How can we expect, without dying to my selfish nature, how can I be an ambassador of Christ? तो इसी प्रकार से जब तक मैं अपने स्वार्थी स्वभाव को नहीं मारता, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता हूँ? It is the will of God that I be the representative of Christ. और परमेश्वर की इच्छा यही है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि बनूं। When I fulfill the will of God in my life, there is meaning in my life. जब मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूँ, तब जाके मेरे जीवन को अर्थ बनता है। When I look at the life of Jesus, he lived only for 33 years. जब मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखता हूँ, वो केवल 33 साल जिए, But he lived the most perfect and most meaningful life ever lived. परंतु जो जीवन उन्होंने जिया वो एक संपूर्ण जीवन था और अर्थ से भरा हुआ था। You and I may ask, how did that happen? और हम ये सवाल करेंगे कि ये कैसे संभव है? Because his will was to do the will of his father. और वो इसीलिए क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि अपने पिता की इच्छा के अनुसार करे। Meaning of life is found when I do the will of my father. और जीवन को मतलब अर्थ तभी आता है जब हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार करें। I lose the meaning of life when I gratify the desires of my sinful nature. और जब हम अपने जो पापी शरीर जो है उसकी स्वभाव के अनुसार चीजें करें, तो हम अपने जीवन का अर्थ खो देते हैं। I lose my meaning in life when I'm building my own kingdom. जब मैं अपना ही राज बनाना की कोशिश करता हूँ, तब मैं अपने जीवन का अर्थ खो देता हूँ। I lose the meaning in my life when I preserve my life. और जब मैं अपना प्राण बचाने की कोशिश करता हूँ, तब मैं अपने जीवन का अर्थ खो देता हूँ। I also lose the meaning in my life when I want to be served by others. और तब जब मैं दूसरों से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो मेरी सेवा करे, तब भी मैं अपने जीवन का अर्थ खो बैठता हूँ। Why the meaning of life is so important to you and me? ये जीवन का अर्थ समझना इतना अहम क्यों है आप और मेरे लिए? Because what meaning I derive in this life will determine how I live after I die. और वो इसीलिए क्योंकि इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, जो अर्थ जो हम समझते हैं वो तय करेगा कि मरने के बाद किस प्रकार का जीवन हम जिएंगे। That is why in 2 Corinthians chapter 5, let us turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 5 and we will close with this. दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय में जाएंगे। And verse 14, 14 आयत। For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। So let me rephrase it a little different way. For the love of Christ compels me that I should no longer live for myself, but for him who died for me and was raised again. तो हम अलग शब्द में ये कह सकते हैं कि मसीह का प्रेम मुझे इस तरह विवश कर देता है कि मैं अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जीऊं जो मेरे लिए मरा। So the question is, does the love of Christ compel you to no longer live for yourself but to live for him? और सवाल यहाँ पे यही है कि क्या मसीह का प्रेम आपको इस तरह विवश कर देता है कि आप अपने लिए नहीं परंतु मसीह के लिए जिए। But if you are living for yourselves, you are not fulfilling the will of God, and thereby you are not satisfied in your search for meaning. और अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं जी रहे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में हमारा जीवन हमें व्यर्थ महसूस होता है। And hence we become a poor representative of Christ. और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व सही से नहीं कर पाते।
So let us recap. और संक्षिप्त में देखेंगे We saw how God's purpose for each of our lives was to be sanctified, to be set apart, to put to death the misdeeds of the body. हमने देखा कि परमेश्वर की हमारे जीवन से यही इच्छा है कि किस प्रकार से हमें पवित्र रहना है, हमें अलग की रखा गया है और किस तरह से हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को हमें काबू करना है. And how that even when I submit to authorities, I am fulfilling the will of God. और किस प्रकार से मैं अपने अधिकारियों के अधीन रहता हूँ तब भी मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता हूँ. So when I fulfill God's will in my life, I find meaning and satisfaction in my life. That is number one. और पहली चीज जो हम याद रखेंगे, जब मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता हूँ तब मेरे जीवन में मुझे अर्थ प्राप्त होता है. I can pursue wealth, I can pursue my career, I can pursue riches, I can pursue pleasures, but there will be no meaning in all these pursuits. It is very clear from the Bible. और वचन से हमें साफ रीति से पता चलता है कि मैं अगर नौकरी के पीछे या फिर संपत्ति के पीछे या फिर जीवन की जो चीजें हैं जो मुझे कुछ लाभ देती है उनके पीछे चलता हूं तो मेरे जीवन को मतलब नहीं है. So let us take heed what King Solomon said, remember your creator in the days of youth. तो इसीलिए शलोमोन ने जो वचन में हमें बताया है वो हम उसके ऊपर ध्यान देंगे कि जवानी के दिनों में मैं अपने सृजनहार को स्मरण रखूं. Fear God and keep his commandments. That is the whole duty of man. और परमेश्वर का भय में हमें जीना है और उसके आज्ञा के अनुसार चलना है और यही काम है मनुष्य का. Because we are made in the image of God, we are God's representative. जो कि हमें परमेश्वर की प्रतिमा में बनाया गया है तो हम उसके प्रतिनिधि हैं. And if we are God's representative, we should ask this question to ourselves, are we representing Christ correctly? और अगर हमें परमेश्वर का प्रतिनिधि बताया गया है तो हमें अपने आप से यही सवाल करना है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को सही से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ. So we looked at the life of Jesus, how he was just for 33 years, he lived not a long life, a very short life, but his life was the most perfect and most meaningful life ever lived. और फिर हमने उदाहरण के तौर पे प्रभु यीशु मसीह को देखा जिन्होंने केवल 33 साल का जीवन जो है वो जिया. इतना छोटा जीवन होने के बावजूद उनका जीवन एक ऐसा जीवन था जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है हमारे लिए किस तरह से परिपूर्ण और संपूर्ण जीवन था. And I think two fundamental reasons were he never came to be served but to serve, and secondly he always sought the will of his father. और उसके दो मूलभूत कारण थे कि पहला कारण ये था कि वो कभी भी उन्होंने नहीं चाहा कि उनकी सेवा की जाए पर हमेशा वो दूसरों की सेवा करना उन्होंने चाहा. और दूसरी बात जो हमेशा उनकी इच्छा यही थी कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जिए. So meaning of life is found when I fulfill and obey God's commands. तो इसीलिए हमारे जीवन को अर्थ तभी मिलता है जब हम परमेश्वर की इच्छा को हम जाने और उसके आज्ञा के अनुसार चले. And if the love of Christ compels me to live as a Christian, I should no longer seek my good, but the good of my brothers and sisters. और अगर मसीह का प्रेम मुझे इस तरह विवश कर देता है कि मैं अपने आप के लिए नहीं परंतु मसीही भाई बहनों के लिए जीऊं. So it is our prayer and desire that every one of us who is listening, that we will never seek our kingdom, but we will seek his kingdom, his righteousness, his ways. That is when God infuses meaning, purpose, and satisfaction in our life. तो आज जो भी यहाँ पे हमसे जुड़े हैं और सुन रहे हैं उन सभी के लिए हमारी यही इच्छा और प्रार्थना है कि हम अपनी राज्य की खोज ना करें परंतु परमेश्वर की राज्य की खोज करें. तब जाके हमारे जीवन में अर्थ आएगा, तब जाके हमें वो व्यर्थ जीवन होने की भावना जो है वो हमसे निकल जाएगी. And we will not wait too long, or else we may end up in the shoes of King Solomon, who tried everything in life and felt that everything was a meaningless pursuit. और हम समय बर्बाद न करें और हम इतना ज्यादा इंतजार न करें जैसे शलोमोन के साथ हुआ जिसने हर एक चीज जो है वो इस संसार की जो है उसने अनुभव की और तब जाके उसे पता चला कि किसी में भी अर्थ नहीं है परमेश्वर के सिवाय. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word.
We thank you for giving us wisdom. We thank you for giving grace. We thank you, O Lord, for your message that you have spoken to us. We pray, O Lord, that you would fill our hearts with so much of joy, O Lord, that we would not seek meaning as the end destination of our lives, O Lord, but we would seek your will, your purpose in our lives, O Lord. Help us, O Lord, that we would not pursue the things of this world like the world does, O Lord, but rather we would pursue that which will please our Heavenly Father in heaven. Give us a heart, O Lord, to seek your will above anything else in this world. Help us, O Lord, that even as we look at your example, O Lord, it is not the duration of the number of years that you lived, but you lived a blameless life. Help us, O Lord, that even as we avoid sexual immorality, even as we learn to control the passions of our body, we would learn to be humble, we would learn to consider others better than ourselves. That in humility, we will always consider our brother and sister better than ourselves. In Jesus' name we pray. Amen.